फिल्म एक सत्य घटना पे आधारित है। इट्स ओके ना इफ आई डू इन हिंदी, राइट? या सो असम की एक घटना है जो असम को छोड़ के शायद बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, जिसे मीडिया सीक्रेट किलिंग नाम से जानते हैं। सीक्रेट किलिंग कहते हैं उसको। जब कुछ अननोन असाइलेंस रात में घरों में घुस के निरत्ते लोगों को मार देते थे। उसके बाद में बहुत सारा इंक्वायरी हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर आज तक ये नहीं पता चला कि वो कौन थे, क्यों मारते थे, और जिनको भी मारा जाता था उनका एक कनेक्शन होता था एक उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और क्योंकि उनका एक कनेक्शन है तो फैमिली को ही वाइप आउट कर दिया जाता था। तो ये फिल्म उसी डार्क चैप्टर को दर्शाता है, जहाँ पे मेरा जो मेन किरदार है, एक यंग बॉय विथ लॉट ऑफ होप्स एंड ड्रीम, जो बाहर पढ़ाई करता है, एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता है, एक हैज़ अ ड्रीम जिसका नाम निर्भय है, जो अनुराग सिन्हा प्ले कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के दौरान उसका पूरा जीवन, पूरा ड्रीम, एवरीथिंग चेंजेस। एंड मैं बेसिकली दिखाना चाहता था कि किसी भी तरीके का वायलेंस अंत में खराबी होता है। सो द फिल्म इज़ बेसिकली गिविंग अ मैसेज that any kind of violence for any reason finally is futile. And we hope that ये फिल्म देख के सिर्फ मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया के लिए, ये फिल्म एक्चुअली पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए ही है, बिकॉज ऐसी कोई भी वायलेंस चीज़ें जब होती है, वी शुड नो, वी शुड टेल दो स्टोरीज, वी शुड रिमेंबर दोज बैड टाइम्स सो दैट वी नेवर रिपीट दैट अगेन। जहाँ तक हम लोग ने ट्रेलर देखा है, सारे किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक एक करके किरदार के बारे में अगर एक्टर्स बता पाए। हाँ, तो मेरे सबसे मेन किरदार अनुराग जी है, अनुराग सिन्हा। तो अनुराग, आप बता सकते हैं आपका किरदार के बारे में? Yes, I would also like to talk about the film, like briefly, and then Yes. about my role. So for me, it is a true and an unheard story of pain and suffering which happened in Assam to the people at the behest of impolitic motives of some people, right? Shadow Assassins is a story which is of pain, which is still embedded in the hearts of the people, and the very fact that it is seeing light and coming out, that it is only going to bring in a lot of peace in their hearts. So for me, it would be like a one last appeal on behalf of those families and those who have lost their lives. Uh, I think it's a very meaningful film of our times. It is going to appeal to your heart and only engender hope and aspirations in your life. So when I started the film, it was a very, very honest start. Right from the start, we have because the story is a true story, so we have made sure that our commitment towards it, the entire team has been very, very honest about it, and I have really enjoyed going through this entire journey, expanding my possibilities as an actor, and understanding the social environment of Assam, the people, trying to mold myself, and I'm sure all of us, all the actors, have molded ourselves into the kind of tribulations that those people must have faced at that time. And I hope that you all are able to relate to it and connect to it. I just want to thank Nilanjanda, who has given all of us that space and freedom to express ourselves the way we want, of course being in the script and according to the script and the storyline, and that shows that he's a very seasoned and a very sensitive filmmaker who has got complete command over what he does, and that is why he allows his actors and the entire technical team to express their creative capacity at ease, and that will be seen in the film when you will see the film. And I have really enjoyed being in this, and it's my honest attempt, and I hope and I wish, pray that you all like it. मेरे लिए इस फिल्म से जुड़ने का सबसे बड़ा जो मोटिव था या सबसे बड़ा जो एक्साइटिंग फैक्टर था वो ये था कि वायलेंस के बारे में, जैसे इन्होंने बताया सर ने, कि वायलेंस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो लोग होते हैं जो एक्टिवली उसका पार्ट नहीं है। तो शैडो असैसिन्स की जो कहानी है उसमें जो दिल को छूने वाली बात है वो यही है कि वो फैमिलीज़ अफेक्टेड हो गई जो डायरेक्टली इससे कोई लेना देना है ही नहीं, एंड दैट इज़ द मिस्ट्री
ऑफ द सिस्टम ऑल्सो, मतलब हम अपनी देश की या दुनिया की सिस्टम देखें तो जो डिसीजंस मेकर हैं उनसे ज़्यादा अफेक्टेड जो कॉमन लोग हैं वो होते हैं। तो वो बात मेरे दिल में बैठी। दूसरी बात कि ये फिल्म आसाम के बारे में है लेकिन एसमीज़ में नहीं है, इट्स इन हिंदी, सो इट्स अ लोकल फिल्म टेलिंग अ ग्लोबल स्टोरी विच मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। थर्डली आई एम प्लेइंग अनुराग्स एल्डर ब्रदर। तो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि जिसको सब मालूम है कि क्या चल रहा है परिवार में, लेकिन वो अपने डर को फैमिली तक ट्रांसलेट नहीं होने देता है, वो अपने तक रखता है। वो कैरेक्टर का जो यूनिकनेस था या यूएसपी था उसने मुझे बहुत एक्साइट किया। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज शूटिंग इन आसाम। आसाम मुझे वैसे ही कॉलेज के टाइम से बहुत मेरे दिल के करीब है। मुझे वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वो सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग मी टू आसाम एंड पेइंग एज वेल। सो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जर्नी रही इनफैक्ट। सर आप बताइए। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच हमारे डायरेक्टर साहब नीलाधन सर और अनुराग सर। मैं इतना हैप्पी, इतना खुश, मैं जितना भी अब तक ये काम किया हूँ, हालांकि मेरा अनुभव अभी बहुत कम है, लाइफ में इतना काम नहीं किया हूँ मैं, बट पहली बार ऐसा मुझे लगा कि मैं कूल, इतना शांत और इतना अच्छे तरह से काम कर पाया आसाम में जाकर। और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ चिन्मय का। चिन्मय करने से पहले एक बड़े महान कलाकार थे हमारे बीच, ब्रह्मा मिश्रा साहब, जो कि इस कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो, और शूटिंग से कुछ दिन पहले उनके देहांत हो जाते हैं। तो हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, वो जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिवार को इस मीठी घड़ी में शक्ति प्रदान करे ईश्वर। बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारी टीम, मनोज सर, कि मुझे इतनी खूबसूरत टीम के साथ काम करने का अवसर मिला। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरा किरदार है अनुराग की मम्मी का, जो मेरी फैमिली का बेटा, बड़ा बेटा वो है, छोटा बेटा ये है। ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है क्योंकि वो दूर पढ़ता है, पूना में पढ़ता है, आसाम से दूर। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये। और ये जब सीन्स होता है कि ये आता है घर पे, फिर मैं इसके लिए स्वेटर बुनती हूँ, खाना बना, इसकी फेवरेट फूड बनाती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा लगाव है उसके साथ। जब इसको जब लेके जाते हैं पुलिस, जो भी सीन्स Don't होता tell. है, हाँ, तो जो ये इमोशंस है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा अंदर है। बहुत लंबा रोल नहीं है, बहुत छोटा रोल है, सीन्स भी कम है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे करके ये, इनके साथ, सबके साथ। और डायरेक्टर सर मैं भी एनएसडी से ही हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, 1994 बैच की। मैं बेसिकली आसाम से हूँ लेकिन रहती हूँ मुंबई में। तो मनोज ने जब मुझे बोला कि कास्टिंग के लिए आपको हम सोच रहे हैं कि क्योंकि थोड़ा हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है फिर। और स्क्रिप्ट भी भेज दिया, पढ़ लिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था स्क्रिप्ट, जिस तरीके से लिखा इन्होंने, जिस तरीके से एक्सप्रेस किया चीज़ें। ज़रूरी है ये जानना, ज़रूरी है क्या घटा था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम कितनी सदमा पहुंचते थे लोगों को, लोकल लोगों को, या जो फैमिली में होता था उनकी फैमिली में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैंने एक्सेप्ट किया था रोल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का 2 दिन। जी क्या कहना चाहेंगे फिल्म के साथ जुड़ के, कैसा लगा? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सारे किरदार, जैसे मैंने कहा, कि एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? वो कास्टिंग डायरेक्टर भी है फिल्म जी एक और चीज ऐड करना चाहूँगा। राकेश भाई हैं, अनुराग हैं, जीवन जी हैं, रोहित हैं, सब इतने कमाल के आपको एक्टर्स, ये ट्रेंड एक्टर्स जिनका काम इतना कमाल का है, वो सब कैसे एक जगह पर आप ले के आ पाए? क्योंकि उसके लिए सबसे पहले क्लोज टू यू, कांग्रेचुलेशन, Thank बहुत you. अच्छी कास्टिंग किया। थैंक यू सो मच। जब दादा ने बोला कि ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, इसमें वो बैलेंस होनी चाहिए कि बॉम्बे के एक्टर्स भी आएंगे और असम के एक्टर्स भी रहेंगे। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, कि ऐसा ना लगे कि ये लोग
बाहर से हैं, वो लोग असम के एक्टर्स हैं और ये सारे बहुत मंजे हुए एक्टर्स हैं इनके साथ, क्योंकि मैं ख़ुद एक्टर हूँ और थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन सबको मैंने परफॉर्म करते हुए फिल्म्स में, थिएटर्स में देखे हैं पहले। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कैरेक्टर्स दिखाई दिए और सब ने मैंने बहुत कम एक्टर्स को अप्रोच किया था सारे, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सबने एक्सेप्ट किया जो भी रोल्स, एंड बहुत अच्छी तरीके से सबने निभाया है। तो थैंक यू ऑल माय कास्ट। एंड अगर क्योंकि मैं भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स फिल्म में कर रहा हूँ, मेरे लिए इस फिल्म में जुड़ने का सबसे बड़ी मकसद ये था कि बचपन में जो ये घटनाएं मैंने अपने आँखों के सामने मैंने देखा है, और इसको सिनेमा के ज़रिए असम के बाहर और पूरी दुनिया में ये कहानी बताने का जो एक अंदर एक था, तो ये जब निरंजना ने बोला कि इस सब्जेक्ट पे, इस ट्रू इवेंट में मैं ये फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली क्योंकि ये हिंदी फिल्म है और पूरे इंडिया में ये रिलीज़ हो रही है, तो आई होप जो रेस्ट ऑफ इंडिया रिलेट कर पाएगी और महसूस कर पाएगी क्या क्या गुजरा था उस समय असम के लोगों में। और जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी वायलेंस जो होता है ना, वो सेंसलेस होता है आखिर में, और इन घटनाओं को इसलिए हमें याद रखना चाहिए, इन घटनाओं के बारे में हमें ये कहानियाँ हमें इसलिए कहनी चाहिए क्योंकि ये कहने का कारण ये है कि ये समझना कि ये दोबारा ना हो। और अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ तो यही उसका भी एक वैसा ही, जैसे इनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट फैमिली के साथ जो हुआ है घटना, इसके साथ भी वही हुआ है, इसके फैमिली के साथ भी वही हुआ है, तो वो उसी दौर से ये कैरेक्टर गुजरा है। तो बहुत ही मेरे लिए ये इमोशनल एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट का भी था। तो आई होप everyone like the film when it comes out. Thank you. तो नीलांजन दा को थैंक यू, और मनोज को, पूरी टीम को, कि हम सब लोग इस फिल्म का हिस्सा बन पाए। देखिए, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि जब कोई ऐसी जिम्मेदार फिल्म कही जा रही हो तो उसमें भी अगर उसको शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि हम सब के सामने जितने हम एक्टर्स हैं, कमर्शियल फिल्म्स ऐसी आती हैं जो कि चाहे वेब सीरीज़ हो या कुछ भी काम हो, तो जो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब कोई एक ऐसी ज़िम्मेदार फिल्म बनाने की कोशिश करे तो हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो जाती है कि हम सब जुड़ें और अपना बेस्ट उसको दे सकें। तो जब ये स्क्रिप्ट मनोज ने भेजी थी तो मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया था कि एक ऐसा सिनेमा बनने जा रहा है जिसका मुझे हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत ही इमीडिएट चीज़ें हुई दोनों तरफ से, और ये फिल्म मेरे खाते में आई, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जो किरदार की बात है तो देख रहे हैं कि भाई हैं, माँ है, बेटा है, दोस्त है, तो मैं इसमें एक सिस्टम हूँ, एक ऐसा सिस्टम जहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, उस सिस्टम का फेस हूँ मैं, जिसको फेस इस फैमिली को करना होता है। और जब किसी एक पावरफुल जगह से कोई सिस्टम ऑपरेट हो रहा होता है तो वो सिस्टम ना चाहते हुए भी किस तरीके से काम करता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है, कि उनके हाथ में, हमारे सिस्टम के हाथ में कुछ होता नहीं है, हर एक का एक चेन्स बनी हुई है जहाँ से वो जाकर के ऑपरेट होता है और वो चीज़ें टैकल की जाती हैं। तो बाकी ज़्यादा ना बताते हुए यही है मेरे किरदार के बारे में, ताकि आप जब फिल्म देखें तो आपको वो सरप्राइज़ मिले, और साथ ही साथ वो सरप्राइजिंग शॉक मिले जो आपको सोचने के लिए मजबूर करे, जिस वजह से दादा ने ये फिल्म बनाने की सोची। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा, एंड थैंक यू सो मच कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन सका। रंजन दा, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अनहर्ड स्टोरी है, तो इसके लिए क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी, और आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर नहीं होगी, तो अगर आपकी रिसर्च के बारे में बताएं इस फिल्म को लेकर। एक चीज़ और जोड़ेंगे उसमें कि क्या आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट आने से लीवरेज मिला आपको इस तरह की फिल्म बनाने में आसान में?
असम में गवर्नमेंट जिस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ चीफ मिनिस्टर बने, इसके पहले बहुत सी सरकारें आई, लेकिन इस तरह का लीवरेज मिल नहीं पाया कि आप इस तरह के सिनेमा को दिखा सकें। अच्छा। क्या ये भी एक पॉइंट है फिल्म इस समय को लाने का? हाँ, अभी असम का स्थिति बहुत ही बेहतर है और असम का सरकार अभी इवन जो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी इस घटना के बारे में पता है, उन्हें भी इस घटना के बारे में उन्होंने बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें भी दुख है इस घटना को लेकर। एक्चुअली असम के जितने लोग हैं सभी को इस घटना से एक इट्स लाइक अ डार्क चैप्टर। जहाँ तक मेरा कहना, मैं असम से हूँ और मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हूँ। इससे पहले मुझे 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। पर ये फिल्म जब मैं बनाने के लिए सोचा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि क्योंकि मैं असम से हूँ और मैं पूना में पढ़ाई करता था, मैं बहुत क्लोजली ये घटना घटते हुए देखा हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये घटा है। तो ये मैं सालों से चाहता था कि इस पर मैं कभी एक फ़िल्म बनाऊँ, पर क्योंकि ये फ़िल्म थोड़ा सा अलग है, इसको बनाने में ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज़ था, फाइनेंस लाने में डिफ़िकल्टीज़ था। पर ये मैं रिसर्च के लिए मैं बता सकता हूँ कि ये रिसर्च करीब मैं 2004 से किए जा रहा हूँ। इस फिल्म के पीछे जो मेन मैंने चीज़ें दिखाया है या दर्शाया है, फिक्शनल डिपिक्शन है। ये जस्टिस के एन शोल्किया करके एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे, जिन्होंने इसके ऊपर एक इंक्वायरी किया था। उस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट को लेके ही मैंने ये पूरा फिल्म को मेनली रिसर्च किया। इस घटना के ऊपर एक किताब भी है जिसका नाम है सीक्रेट किलिंग ऑफ असम, वो भी मैंने पढ़ी। और न्यूज़पेपर मेरा रिसर्च का सबसे बड़ा, आप फिल्म भी देखेंगे तो आप वो दिख जाएगा, न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर ने ही एक टर्म कॉइन किया था सीक्रेट किलिंग्स, तो उसी से मेरा रिसर्च है। एंड क्योंकि मैं बहुत लोगों को बहुत करीब से जानता था, तो मुझे पता था एग्जैक्टली अंदर में क्या हो रहा था। पर एक चीज़ मैं जानबूझ के कहना चाहता था कि फिल्म का नाम शैडो असैसिन्स है, क्योंकि जस्टिस के एन शोल्किया रिपोर्ट भी 2018 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सो जो भी जस्टिस के एन शोल्किया रिपोर्ट ने भी बोला था, वो भी आज के डेट में खारिज है। सो कौन है वो मिस्ट्री रह गया। तो इसीलिए मेरा फिल्म का नाम भी शैडो असैसिन है। और मैं इसलिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। हम सबको पता है क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, पर कोई खड़ा होकर बोल नहीं सकता कि इसलिए हो रहा था और ये कर रहे थे। तो इसलिए फिल्म का नाम भी शैडो असैसिन्स है। निरंजन, जब ट्रेलर हम लोग देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहा था, बीट 90s में सरफरोश आई या फिर रिसेंटली हैदर आई, इवन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर दैट मैटर, हर चीज़ के एलिमेंट उसमें नजर आ रहे थे। तो एज अ फिल्म मेकर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस तरह का कंसेप्ट जब सब्जेक्ट आता है ऑन पेपर, ईजी होता है फिल्म मेकर के लिए कि यार ऐसे कुछ बना दें और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें जो आप दिखाना चाहते हैं, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट वर्क्स आउट फॉर द ऑडियंस, स्पेशली इन हिंदी सर्किट? Yes, a film like this, I will say, is not easy at all, because it is difficult, because I am trying to encompass a lot of a long period of time in 2 hours with a lot of emotion, a lot of suppressed emotion that I wanted to show. So like the character that Hemanji is playing is actually a character who knows everything, yet he is a control character. Because he wants that he is in Assam and his brother who is studying out in Pune, Nirbhay, doesn't get sucked into it. Now to get into that, another important character which is completely fictionalized but becomes very important for me is the character that Mishti plays. Now he is already pursuing his dream and she wants to pursue her dream. So she also wants to come out. So असम में 1998 से लेके आप अगर देखेंगे, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब हम स्टूडेंट थे, ज़्यादातर हम लोग असम छोड़ के बाहर आ जाते थे। आइदर हम दिल्ली में आ जाते थे या पूना आते थे पढ़ाई करने। उसका मेन रीज़न ये था कि उस समय माहौल अच्छा नहीं था। अब वैसा नहीं है ऑफ कोर्स। सो ये फिल्म बनाते टाइम मेरे को द डिफ़िकल्टी वाज टू हाउ टू स्ट्रक्चर इट, because I am following 4 years, 1998 to 2001. So ये एक थोड़ा structural play है फिल्म में. So it has a structural play, linear नहीं है कि अब शुरू हुआ और ख़त्म, जैसे नॉर्मल कहानी होता है वैसा नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चरल भी नहीं है, जैसे कौन सा फिल्म है, मेमेंटो जैसा, वैसा भी कुछ, या गजनी जैसा,
या इंसेप्शन जैसे या इंसेप्शन जैसा, बट एक स्ट्रक्चरल प्ले है। अनुराग भाई, also for you, I mean, बहुत कम प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखते हैं, वेरी सिलेक्टिव कि कुछ खास सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप वर्कआउट करें, या इसमें भी क्या कुछ आपके तरफ से किस तरह की एक्टिविटीज हुई? So I have see, the thing is that if I like the story, if I like my role in the script, then I take it, right? In this film especially, I am very much moved by the honesty of the script of a director, and I absolutely relate to the kind of journey these people must have had at that time. So there is a journey of Nirbhaya, transformation of a young man to a rebellion, right? And how his life is affected, how his family is affected, how how he's interacting with different elements of the society. So all of that is, for me as an actor, is a point where I can really bring on my work into the film, and this gives me an opportunity to be a part of it. And it is a true story, and I relate it from my heart, and I would do anything to be a part of a cinema like this. As I said, it's a meaningful film. It's a